یہ ہے کہ احمد پور شرقیہ میں پاکستان ایکسپریس ٹرین کی 2 بوگیاں ٹریک سے اتر گئی ہیں، تاہم تمام مسافر محفوظ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ریلوے حکام کے مطابق کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا۔ 2 بوگیاں مبارک پور اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان ایکسپریس ٹرین کی اے سی اسٹینڈرڈ اور ڈائننگ کار کی بوگیاں پٹری سے اتری۔ ڈائننگ کار بوگی ویل الگ ہونے کی وجہ سے کچے میں گر گئی ہے۔ بوگیاں پٹری سے اترنے کے باعث اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک پر ریلوے ٹریفک معطل ہو چکا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق حادثے کی وجہ سے کئی ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روک لیا گیا۔ سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس کو احمد پور اسٹیشن پر ہی روک لیا گیا، جبکہ راولپنڈی جانے والی تیزگام کو لیاقت پور اسٹیشن پر روکا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کراچی ایکسپریس اور ملت ایکسپریس کو خانپور اسٹیشن پر روکا گیا ہے۔ ملتان جانے والی بہاؤدین زکریا ایکسپریس کو رحیم یار خان اسٹیشن پر روک لیا گیا۔ ملتان سے ریلیف ٹرین جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دی گئی ہے۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن لیے بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ 2 جون کو بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات شیڈول ہے۔ پاکستانی وفد نیو یارک میں امریکی تھنک ٹینک اور کانگریس کے ارکان سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں منعقدہ کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ پاکستانی وفد میں مصدق ملک، سینیٹر شہری رحمان، خرم دستگیر، تہمینہ جنجوعہ، جلیل عباس جیلانی اور ہینا ربانی کھر شامل ہیں۔ وفد مختلف شعبۂ حیات زندگی سے وابستہ پاکستانیوں، صحافیوں اور ماہرین سے بھی تبادلہ خیال کرے گا۔ یہ دورہ پاکستان کی عالمی سطح پر مؤثر سفارتی موجودگی کے اظہار کا اہم موقع قرار دیا جا رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے خبردار کیا کہ جنوبی ایشیا میں کئی غیر شدہ حل تنازعات اب بھی متحرک ہیں جو کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سنگاپور میں جاری شنگریلا ڈائیلاگ کے دوران ایک اہم خطاب میں کہی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ ایشیا پیسیفک اب 21ویں صدی کی جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے، جہاں اسٹریٹجک کشیدگی میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں بحرانوں سے نمٹنے کے ادارہ جاتی نظام نہ صرف نازک ہیں بلکہ غیر مساوی بھی ہیں، جس کی وجہ سے تنازعات کی شدت کم کرنے کے لیے مؤثر مکالمہ اور تعاون کا فقدان ہے۔ انہوں نے اس عمل پر زور دیا کہ جنوبی ایشیا کو ایشیا پیسیفک کے استحکام سے متعلق مکالمے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں تنازع کشمیر سمیت کئی بنیادی مسائل حل طلب ہیں۔ خطاب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز نے کہا کہ پائیدار کرائسس مینجمنٹ کے لیے باہمی برداشت، واضح ریڈ لائنز اور مساوی رویہ ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک فریقین کو برابری کا درجہ نہیں دیا جاتا، کوئی بھی اسٹریٹجک فریم ورک مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج کے اعلیٰ عسکری حکام نے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ نشستوں کا انعقاد کیا۔ اساتذہ اور طلباء کی نشستوں میں کور کمانڈرز نے زور دیا کہ تعلیم کے بغیر ترقی کا سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ کور کمانڈرز نے طلباء و طالبات کو ملک میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے کردار کے حوالے سے آگاہی دی۔ کور کمانڈرز نے طلباء و طالبات پر زور دیا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر زور دیں۔ کور کمانڈرز نے طلباء کو ہدایت کی کہ وہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ عسکری حکام کا کہنا تھا کہ طلباء پاکستان کا روشن مستقبل ہیں، وہ عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ کور کمانڈرز نے طلباء پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں اور منفی خبروں کا تدارک کریں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمس سے ٹیلی فونک رابطہ، سلامتی کونسل سمیت ہر فورم پر باہمی تعاون بڑھانے پر بات کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے قریبی روابط قائم رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس ماہ اقوام متحدہ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کرنے پر بھی اتفاق کیا۔
आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने बलोच अमायदीन को खराबियों की निशानदही करने और हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उन्होंने जिरगे में मौजूद बलूचिस्तान के अमायदीन से कहा कि आपकी कोई शिकायत होगी हमारी सर आंखों पर, मगर दहशत गर्दों को दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं आता। जो लोग भटक गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए हम सबको बेहतरीन काविश करना होगी। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत में बलूचिस्तान के सूबे के साथ नाइंसाफ़ी का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बलूचिस्तान के अमायदीन बैठें, मिलकर बात करें, हमें बताएं कि वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें हम दूर करेंगे। बात करने से ही कुंबा खुशहाल होता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अगले माली साल 1000 अरब के तरक्याती प्रोग्राम्स में बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। ये फ़ंड शफाफियत के साथ खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्द खून के प्यासे हैं, उन्हें पाकिस्तान की तरक्की नहीं भाती, उनका रास्ता आपको नाकाम बनाना है। वो क्या नकायस हैं जिन्हें आपके मशवरे से दूर किया जा सकता है। आपको बताएंगे सियालकोट के हल्का PP 52 संबड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे मलिक अली इस वक्त संबड़ियाल में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हल्के में इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जी मलिक अली, क्या कहेंगे आप? अमन अमान की सूरत हाल कैसी है, टर्नआउट कैसा देख रहे हैं और किस उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूंगी। सियालकोट की तहसील समरियाल हल्का PP 52 के अंदर सुबह 8 से जो पोलिंग का अमल जारी हो गया है वो बगैर किसी तरतीब से जो है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं आपको ये बताता चलूंगी, यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम है। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से हिना अरशद वड़ैच और ज़ाद मीरवाज फाहद नशाज हैं, जो कि जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला में तोड़ते हैं। जो लोग हैं वो जोक आकर अपने वोट कास्ट कर जा रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। DPO सियालकोट तहसीलदार की जानिब से 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अभी तक किसी भी नाखुशगवार वाकया की कोई इत्तला नहीं है जी। जो टर्न आउट है वो भी इस वक्त जो है वो स्लो दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अली, आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी ने सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि धांधली करना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। मुस्लिम लीग नून सरकारी मशीनरी के बगैर कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। मुस्लिम लीग नून के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई हिकमत अमली। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कम बैक करेगी। पिछली 5 दहाइयों से पीपल्स पार्टी को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब में हम किसी आसरे या सहारे से वापस नहीं आना चाहते। नाज़रीन, ज़िंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छाँव होते हैं। वालिदैन की बेलौस मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का अनमोल असासा है। वालिदैन की इताअत अल्लाह ताला का हुक्म, सुन्नत रसूल और मशरक़ी रिवायत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वालिदैन के आलमी दिन पर जारी पैगाम में कहा, वालिदैन की अपने बच्चों के लिए मोहब्बत और कुर्बानियाँ इंसानी फितरत और जिबलत में शामिल हैं। वालिदैन के बगैर घर सिर्फ ईंटों का मकान होता है। वालिदैन में मौजूदगी से मामूली सा कमरा भी जन्नत बन जाता है। मरियम नवाज़ का मज़ीद कहना था कि मैं आज जिस मकाम पर हूँ वो शफीक वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वालिदैन ही औलाद की हर कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। अपने वालिदैन की खिदमत और इताअत को शर्फ समझती हूँ। बलूचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली के सिटी पुलिस थाने की हुदूद में बेदार रोड पर नामालूम तखरीबकारों ने गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक तखरीबकारों ने ज़ेर ज़मीन 8 से 10 किलोग्राम बारूद नस्ब कर रखा था, जिसका धमाका किया गया। धमाके के नतीजे में एक पुरानी और गैर फाल गैस पाइपलाइन को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तहम कोयटा जाने वाली 18 इंच चकोतर की मरकजी गैस पाइपलाइन मुकम्मल तौर पर महफूज रही। पुलिस के मुताबिक मुतासरा पाइपलाइन में गैस मौजूद नहीं थी, जिसके बायस मुमकिना बड़ा नुकसान टल गया। पुलिस और मुतालिका इदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ईद उल अज़हा की आमद से कबल मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। बहावल नगर की मवेशी मंडी में 15-15 मन वज़नी बैलों की खूबसूरत जोड़ी राजू और कालू ने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं बहावल नगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वसीम अख्तर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। बहावल नगर की मवेशी मंडी में इस बार सबकी नज़रें राजू और कालू नामी बैलों की जोड़ी पर टिकी हुई। 15-15 मन ये वजनी जोड़ी ना सिर्फ जिसामत में शानदार है बल्कि इनकी खुराक और देखभाल भी कमाल है। मालिक ने इनकी परवरिश कुछ खास अंदाज में की है। 3 साल की उम्र हो गई, मूछ धुंधे गए,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਜ ਵਗੈਰਾ ਸੈਲਜ ਆਲੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਚੌਕਰ, ਦੁੱਧ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਜਨਾਬ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਮਣ ਅਸੀਂ कर देता है। चमकती खाल, मतवाजन चाल और बेहतरीन खुराक ने राजू और कालू को मंडी का स्टार बना दिया है, मगर 30 लाख की कीमत सुनकर खरीदार सोच में पड़ गए हैं। जानवर माशाल्लाह खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे पसंद भी हैं। इब्राहिम इंशाल्लाह कुर्बानी भी करनी है, पर इंशाल्लाह 30 लाख तो कोई कीमत थोड़ी जी घट करो, इंशाल्लाह मैं कोशिश मेहनत करके खरीद लूँगा। एक तरफ खरीदार कम कीमत में अच्छा जानवर खरीदना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये बैल अपनी इनफरादियत और कीमत की वजह से तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अब देखना यह है कि राजू और कालू असल कदरदान के हाथ फरोख्त होते हैं या फिर अगली मंडी का रुख करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वसीम अख्तर, NTN न्यूज़, बहावल नगर। सिख तंजीमों ने कैनेडियन हुकूमत से मोदी को G7 इजलास में मदऊ ना करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग पर कैनेडियन सिख बरादरी का बड़ा मुतालबा सामने आया है। कनाडा की सिख तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोदी को G7 इजलास में मदऊ ना किया जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा G7 के रहनुमाओं की मेज़बानी कर रहा है। इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय कमीशन के सुदूर शामिल हैं। टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि मोदी को मदऊ करना दुरुस्त नहीं। जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे, उसे मदऊ ना किया जाए। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आयद कर चुकी है। इंसानी हुकूक के मसाइल को इक़्तिसादी मफादात पर तरजीह दी जानी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता में खुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ ने कहा कि जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास की जानिब से गज़ा जंगबंदी का अमरीकी मनसूबा मुस्तरद किए जाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए स्टीव विटकोफ ने कहा कि जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। इस हवाले से हमास के सीनियर अहदेदार ने कहा कि हमने जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ इज़राइल का रद्द-ए-अमल मुतज़ाद है। उन्होंने कहा कि हमास से मुतालिक अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़ गैर मुनसिफ़ाना था। स्टीव विटकोफ के मौक़िफ़ से ज़ाहिर होता है कि उनका झुकाव इज़राइल की तरफ है। ईरान ने अफजुदा यूरेनियम से मुतालिक आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को जानिबदार करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों को कोई जगह नहीं और इस ज़िम्न में ईरान की तमाम तर सरगर्मियाँ IAEA की ज़ेर निगरानी और मुकम्मल शफ़ाफ़ हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर तवानाई दाखिली सतह पर तैयार करने पर कोई आलमी पाबंदी नहीं और ईरान की कोई ऐसी तनसीब या सरगर्मी नहीं जो ज़ाहिर न की गई हो।